Hello everyone, welcome back. Today's we have the topic tumor of the eye. In an earlier lecture, we had discussed about the refractive disease, and now we have a topic tumor of eye. Let's continue with that. Okay. So, what is ocular tumor? Ocular tumor can appear on the eyelids in the eye conjunctiva, choroid, or retina, and in the orbit, the cavity that houses of the eyeball. Okay. So, what are the ocular tumor? Ocular tumor can be appear on eyelid. It's appear over the eyelid, on the eyelid, in the eye conjunctiva, where we can see that in conjunctiva, choroid, or retina. Okay. So, it is found in conjunctiva, choroid, or retina, and in the orbit, the cavity that houses the eyeball. Okay, the cavity that houses the eyeball. Okay, eye neoplasm can affect all part of the eye and can be benign tumor or malignant tumor cancer. Okay, so eye neoplasm can affect all part of the eye. Eye neoplasm can affect all part of eye and can be benign tumor or malignant tumor cancer. Okay, so eye neoplasm means can affect all part of the eye. It can affect all part of eye and it can ये आपका it can be आपका benign tumor हो सकता है and it can be आपका tumor और malignant tumor आपका cancerous tumor भी हो सकता है. Eye cancers can be primarily start within the eye. अब आइज का जो कैंसरस है it start from within the eye or the metastatic cancer is spread to the eye from the another organ. Okay, so eye cancer can be primary, it can start within the eye, or it is a metastatic cancer. Metastatic means spread to the eye to the another organ. Okay, so the two most common cancers that is spread to the eye from the another organ are breast cancer and lung cancer. Okay, so there are the two main most common cancers. First, there are two most common cancers that is spread to the eye from the another organ are breast cancer or lung cancer. Other less common site of origin include the prostate, kidney, thyroid, skin, colon, or blood or bone marrow. Okay, so other less common site of origin include the prostate, kidney, thyroid, skin, colon, or blood or bone marrow. Okay, so other common site of origin that is include first is the prostate, second is the kidney, thyroid, skin, colon, or blood or bone marrow. Okay, so early diagnosis and treatment is necessary. Time is of the essence to save vision, the eye, and even the life of a patient in the most serious cases. Okay, so early diagnosis and treatment is necessary. For that, the time is of the essence of safe vision. Time is the essence of safe vision and the eye, and even the life of patient in the most serious cases. Okay, so all that, and there are several types of benign and malignant tumor that affect the eye and its different structure. Okay, so there are the several types of benign and malignant tumor. There are different type of benign and malignant tumor that will affect the eye and its different structure include tumor of the orbit, tumor of the lacrimal gland, tumor of the eyelid, tumor of conjunctiva, tumor of the uveal tract, ट्यूमर ऑफ द रेटिना. ओके, सो ये आपका किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह पर आपका हो सकता है, जो कि आपका वेरियस डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लेस को आपका अफेक्ट कर सकता है, डिफरेंट रीजन को आपके ट्यूमर्स को अफेक्ट कर सकता है. ट्यूमर ऑफ आपका ऑर्बिट हो सकता है, ट्यूमर ऑफ आपका लैक्रिमल ग्लैंड हो सकता है, ट्यूमर ऑफ आईलिड्स हो सकता है, ट्यूमर ऑफ कंजक्टिवा हो सकता है, ट्यूमर ऑफ यूविलियल ट्रैक हो सकता है, ट्यूमर ऑफ द रेटिना आपका हो सकता है. गुड इट. So orbital tumor, next we can see orbital tumor. A lesion in the orbit.
decide whether it is an ocular lesion or a non-ocular lesion. Okay, so decide whether it is a ocular lesion or it is non-ocular lesion. Example, is it involving the globe or involving the structure outside the globe? Okay, example, it is involving the globe, it is in इसमें आपका इन्वॉल्व हो सकता है ग्लोब का, और इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर आउटसाइड द ग्लोब, राइट। सो इन्वॉल्व होना ग्लोब का और आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोब का आपका इन्वॉल्वमेंट होना। इफ इट इज नॉन ऑक्यूलर, if it is non-ocular, just a minute, and example, it is involving the globe or involving the structure of the outside of globe। अब इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो आपका आइस का ग्लोब है उसका हो सकता है, और इट कैन बी आपका आउटसाइड ऑफ ग्लोब भी आपका हो सकता है। इफ इट इज नॉन ऑक्यूलर लीजन, इन केस ये नॉन ऑक्यूलर लीजन होता है तो सी द लीजन इज इन्वॉल्विंग विच स्पेस। अभी किस स्पेस पर हुआ, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, हमें फाइंड आउट करना होता है। इफ द लीजन इज non-ocular, in case it is a non-ocular lesion, and see the lesion is involving which space। अब lesion को देखना है कि किस स्पेस पर, किस लोकेशन पर है particular, we have to see that। okay, now extraocular, globe, corneal and intracorneal। okay, नेक्स्ट है इंट्राकॉर्नल। आपका इंट्राकॉर्नल कंपार्टमेंट में होता है। इंट्राकॉर्नल इज द जिसमें आपका इंट्राकॉर्नल कंपार्टमेंट के फैट में होता है। यहाँ पर आपकी जो नर्व होती है, जैसे द क्रैनियल नर्व, जिसमें आपकी ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर एंड नेजोसिलियरी ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व होती है, एड्यूसेंस नर्व होती हैं जो कि इसके सेंसेशन को रेगुलेट करती हैं, इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करती हैं। सीलियरी गैंग्लियंस हो गया एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरीज हो गया, ये सारे इसको रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉर्नल डिपार्टमेंट। एक्स्ट्रा कॉर्नल डिपार्टमेंट में आता है आपका क्रैनियल नर्व जो कि रेगुलेट करती है लैक्रिमल एंड फ्रंटल ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व, ट्रोकेलियन नर्व एंड लैक्रिमल ग्लैंड। करेक्ट। सो इंट्राकॉर्नल स्पेस में जो ट्यूमर होता है, इट इज बिनाइन ट्यूमर एंड डर्मोइड्स इसका इसमें फॉर्मेशन होता है, कैपिलरीज एंड कैवर्नस हीमेनगेमिया का फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिक नर्व का आपका फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिक न्यूराइटाइस का फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिक नर्व आपका ग्लियोमा होता है, ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमा होता है, एंड इसके स्केवेनोमा ऑफ द थर्ड एंड सिक्स्थ क्रैनियल नर्व आपका दिखने को इसमें हमको मिल जाता है। ओके, सो इंट्राकॉर्नल स्पेस में आपका जो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है वही आपका बिनाइन ट्यूमर हो सकता है। डर्मोइड्स का इसमें फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका कैपिलरी एंड कैवर्नस हीमेनगियोमा आपका होता है, ऑप्टिक नर्व आपका लीसन होता है। अब ऑप्टिक नर्व में आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, ऑप्टिक नर्व आपका गिलोमा हो सकता है, ऑप्टिक नर्व आपका मेनिनगियोमा आपका हो सकता है, स्क्वेनोमा हो सकता है आपका, स्क्वेनोमा थर्ड एंड सिक्स्थ क्रैनियल नर्व। इट इज द नेक्स्ट इसमें जो होता है आपका जैसे डर्मोइटिस। नेक्स्ट आपका मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में आपका लिम्फोमा, मोर प्रिवलेंट नियोप्लाज्म इन द अडल्ट एंड रेब्डोमायोसार्कोमा इन द चिल्ड्रन। ओके, सो ये आपका मैलिग्नेंट आपका ट्यूमर हो सकता है जो कि आपके लिम्फोमा में होना। लिम्फोमा इज द मोर प्रिवलेंट नियोप्लाज्म इन द अडल्ट में होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका रेब्डोमायोसार्कोमा आपका चिल्ड्रन में ज्यादातर ये देखने को हमको मिल जाता है। गुड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉर्नल स्पेस ट्यूमर। इटियोलॉजी इसका क्या हो सकता है, बिनाइन जो है जैसे डर्मोइड सिस्ट की वजह से आपका हो सकता है, स्केवेनोमा ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व की वजह से हो सकता है, मेटास्टेटिक की वजह से हो सकता है, या फिर लैक्रिमल ग्लैंड में आपका ट्यूमर होने की वजह से आपको कॉज हो सकता है। नेक्स्ट द डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है यूजुअली ऑक्यूर इन द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में हमको देखने को मिलता है एंड मेकअप 4 to 6% ऑफ ऑर्बिटल ट्यूमर, 4 to 6% ऑफ ऑर्बिटल ट्यूमर में मिलता है। पेनलेस मास का फॉर्मेशन होता है, फ्री फ्रॉम द स्किन होती है इसमें, विथ वेरिएबल ocular displacement होता है। ओके, so it is usually occur in the children and make up to 4 to 6% of the orbital tumor। usually occur in the children, ये children में ज़्यादा देखने को मिलता है, and make up of 4 to 6% of the orbital tumor। it is a painless होता है, painless mass होता है, free from the skin, skin से free from होता है, with variable ocular इसमें displacement होता है।
नेक्स्ट मोस्टली ये लोकेटेड होता है नियर द लैक्रिमल फोसा ऑफ द नेजल बोन, ग्रो स्लोली, रीमॉडलिंग एडजेसेंट बोन और स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है। ओके, लाइक दैट। Next, the rhabdomyosarcoma, most common primary malignant tumor of the orbit in children. A highly malignant tumor, average एज ऑफ प्रेजेंटेशन 7 ईयर, मेल एंड फीमेल बोथ में हो सकता है आपका, एंड मोर जो होता है फीमेल में लेस होता है एज कंपेरिजन टू मेल्स। ओके, देन प्रेजेंट विद द रैपिडली प्रोग्रेसिव ऑप्थेल्मोस, origin from the extraocular muscles, nasopharynx or paranasal sinus, usually present in the supromedial orbit and may produce bone destruction. Got it? एंड लैक्रिमल ग्लैंड ट्यूमर विनाइन ट्यूमर आपका हो सकता है। इट इज कॉज इन दी लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है वहां पर आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, एंड ये कहाँ पे होता है आपका विनाइन में होता है आपका पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा होना, स्केवेनुमा होना, डर्मोइड में होना आपका न्यूरोफाइब्रोमा होना, मैलिग्नेंट आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, मैलिग्नेंट आपका एडिनोइड सिस्टिक आपका कार्सिनोमा का फॉर्मेशन होना, मैलिग्नेंट आपका मिक्स ट्यूमर ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड होना, एडिनो कार्सिनोमा होना, आपका मेटास्टेटिक ट्यूमर होना। सो ऑल दिस ट्यूमर हमको फाइंड आउट होते हैं। मैलिग्नेंट में आपका एडिनोइड cystic carcinoma, malignant mixed tumor of the lacrimal gland, adenocarcinoma, and metastatic tumor. Got it? So all these are the benign and malignant tumor. And next up, pleomorphic adenoma. Most common epithelial tumor, benign mixed cell tumor. Okay, so most common epithelial tumor is a benign mixed cell tumor. Presentation life adult life with painless, adult में जो life होती है it is a painless smooth फिर non tender होता है, slowly growing in the upper outer quadrant of the eyes में देखने को मिलता है। Examination, most cases arising from the orbital portion of the lacrimal gland, CT scan, bony excavation of the lacrimal gland and fossa। ओके, सो इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है अडल्ट में, प्रेजेंटेशन जो होता है अडल्ट में लाइफ विद द पेनलेस। अब इसमें जो लाइफ होती है इसका यूजुअली पेनलेस होता है, स्मूथ होता है, फिर नॉन टेंडर होता है, स्मूथ होता है फिर में नॉन टेंडर्स होता है, स्लोली ग्रोइंग इन दी अपर क्वाड्रेंट ऑफ, स्लोली जो ग्रोइंग होता है अपर क्वाड्रेंट में आपका आउटर क्वाड्रेंट में ग्रोइंग होता है। एग्जामिनेशन इसका मोस्ट केसेस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल पोर्शन, मोस्ट ऑफ द केस है वो अराइज होते हैं ऑर्बिटल पोर्शन से ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। सीटी स्कैन हम इसमें कर सकते हैं, एग्जामिनेशन बॉनी एक्साबेशन टेस्ट होता है जो हम कर सकते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड का फोसा टेस्ट हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ आपकी लेटरल और विटोमी इसमें हम यूज कर सकते हैं। गुड इट। नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ द आइज। तो लिड ट्यूमर जो आपकी आई लिड्स है उसमें आपका ट्यूमर होना, लिड्स में आपका ट्यूमर होना। बिनाइन ट्यूमर जो होगा इसमें क्या होगा, सिंपल पेपिलोमा का फॉर्मेशन होगा, नेवस का फॉर्मेशन होगा और एंजियोमा का इसमें फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हिमेंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा एंड सिवेसियस एडिनोमा। ओके, सो इट इज ये आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट है सिंपल पेपिलोमा, नेक्स्ट है नेवियस एंड एंजियोमा एंड हीमोमेनिजियोमा एंड न्यूरोफाइब्रोमा। नेक्स्ट है आपका सिवेसियस एडिनोमा। देन प्री कैंसरस कंडीशन आपका सोलर कैरेटोसिस एंड carcinoma is situated and xeroderma pigmentosa। ओके, सो इट इज द प्री कैंसरस इन स्टेज में आता है। तो ये प्री कैंसरस स्टेज में आपको कौन कौन सा देखने को मिलता है, फर्स्ट है आपका सोलर कैरेटोसिस, कौन सा है सोलर कैरेटोसिस, सेकंड आपका कार्सिनोमा इन द सिचुएटेड, नेक्स्ट है आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। गुड इट, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। सो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ प्री कैंसरस कंडीशन। अब कैंसरस में कौन कौन सा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपका कैंसरस में कौन कौन सा आता है, तो एस्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, इसके अंडर कितने आते हैं, दो, एस्क्यूमस स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा।
Okay. Next, non-melanoma skin cancer account for more than one third of the all cancer. Basal cell carcinoma (BCC) account for 92.5% of all eyelids tumor. Squamous cells, squamous cells, where is it? Squamous cells carcinoma account. Here's what I found. Squamous cells carcinoma (SSC) is 5% होता है and sebaceous gland carcinoma (SGC) 4.1% हो गए. So इंसिडेंस इसका है ओरिजिन साइट एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर. इंसिडेंस में मोस्ट कॉमन होता है आपका एंड सेकंड बीसीसी. बीसीसी जो है आपका मोस्ट कॉमन होता है. बीसीसी मीन्स क्या है? बेसल सेल्स कार्सिनोमा. एंड एससीसी मीन्स क्या है आपका? एससीसी मीन्स क्या है आपका? एस्क्यूमस स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा इज सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है. एंड एस जी सी, एस जी सी स्टैंड फॉर एस जी सी. एस जी सी मीन्स क्या होता है आपका? सेबेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा. दिस इज द लीस्ट कॉमन होता है. ओके. ओके, सो यहाँ पर हमने देखा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपका ट्यूमर के बारे में, किस किस रीजन पर पर्टिकुलर किस किस लोकेशन पर आपको ट्यूमर होता है उसके बारे में हमने जाना. और इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इसका एनाटॉमिकल इसका प्रेजेंटेशन क्या है उसके बारे में हमने जाना. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस के बारे में, इसका मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे. राइट. सो I hope you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. This is the part 1. We also talk about all this type of tumors का management क्या है, इनका diagnosis क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे. Alright. तो यहाँ पर हमने जाना हमारा ट्यूमर के बारे में. Put it. Just a minute. It's a network issue, like technical issue. ओके. नेक्स्ट कंजक्टिवल ट्यूमर. कंजक्टिवल ट्यूमर क्या होता है? कंजक्टिवल ट्यूमर नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर. इट इज अ नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द कंजक्टिवल ट्यूमर. कंजक्टिवल ट्यूमर क्या होता है? कंजक्टिवल ट्यूमर, कंजक्टिवल ट्यूमर नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर, congenital dermoid and lipodermoid. It is a congenital dermoid and lipodermoid choristomas. Benign simple granuloma, papilloma, adenoma, and fibroma and angiomas. Okay. So benign में क्या है? First is the congenital. Congenital में आपका dermoid, lipodermoid. First आपका dermoid, second is lipodermoid. Lipodermoid से आपका choristomas इसमें आता है. Second one is the benign. Benign में आता है आपका simple granuloma, papilloma, adenoma, fibroma and angiomas. Okay. थर्ड में आता है आपका प्री मैलिग्नेंट. प्री मैलिग्नेंट में आपका आता है इंट्रा एपिथेलियल एपिथेलियोमा. ओके. सो प्री मैलिग्नेंट में कौन सा आता है आपका? इंट्रा एपिथेलियल. इंट्रा एपिथेलियल में आपका एपिथेलियोमा ब्राउन स्पीसीज आ जाता है इसमें आपका. नेक्स्ट आपका मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट में आपका आता है एपिथेलियोमा और एस्ट्रोमस सेल्स. ओके. सो एपिथेलियोमा और एस्ट्रोमस सेल्स कार्सिनोमा basal cell carcinoma. Okay. नेक्स्ट पिगमेंटेड ट्यूमर. पिगमेंटेड ट्यूमर में फर्स्ट आपका बेनाइन. बेनाइन में आपका आता है नेवी और कॉन्जेनिटल मोल्स. सेकंड में आता है आपका प्री कैंसरस में आपका आ जाता है मेलेनोसिस. मेलेनोसिस में आपका सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा एंड लेंटिगो मेलेनोमा. ओके. सो फर्स्ट है आपका बेनाइन. बेनाइन में आपका आता है नेवी और कॉन्जेनिटल मोल्स. सेकंड में आता है आपका प्री कैंसरस मेलेनोमा. मेलेनोसिस means superficial
and spreading melanomas and maligna. Okay, so malignant में आपका आता है primary melanoma and malignant melanoma. नेक्स्ट आपका यूवीएल ट्रैक ट्यूमर. यूवीएल ट्रैक ट्यूमर में क्या होता है, ट्यूमर्स ऑफ द कोरोइड. कोरोइड में आपका ट्यूमर होना, कोरोइड में ट्यूमर होना, इट इज बिनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट भी आपका हो सकता है. तो बिनाइन में जो होता है फर्स्ट आता है आपका नेवस आता है आपका हिमेनो hemangioma and melanocytoma and choroid osteoma. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट में आपका मेलेनोमा एंड ट्यूमर ऑफ द सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी में जो ट्यूमर होता है इट इज बिनाइन ट्यूमर, आपका हाइपरप्लेसिया बिनाइन सिस्ट होता है. एंड नेक्स्ट आता है आपका मेड्यूलो एपिथेलियोमा एंड मैलिग्नेंट. ओके, नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ द आइरिस. आइरिस का जो आपका ट्यूमर होता है इट इज बिनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है. बिनाइन में जो होता है आपका नेवियस होता है, आपका बिनाइन सिस्ट होता है, आपका नेवियो जेंथोमा, सॉरी नेवियो जेंथो एंडोथेलियोमा. ओके, सो ये कौन कौन सा होता है आपका बिनाइन में जो होता है, बिनाइन आपका नेवस होता है, बिनाइन आपका सिस्ट होता है एंड नेवो जेंथो एंडोथेलियोमा. मैलिग्नेंट में होता है आपके मेलेनोमा. ओके, सो दीस आर द ट्यूमर ऑफ द आइरिस. आइरिस में जो ट्यूमर होता है. नेक्स्ट है कोरोइडल मेलेनोमा. कोरोइडल मेलेनोमा टिपिकली बिनाइन असिम्प्टोमेटिक. टिपिकली बिनाइन इट इज असिम्प्टोमेटिक होता है, हाउएवर ब्लड इसमें विजन होता है एंड लॉस एंड फ्लेसेस होता है, आपका फ्लोटर्स होता है. मे एंड मे बी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं. टू वैराइटीज ऑफ सिम्टम आपको देखने को मिलता है. फर्स्ट होता है आपका सरकम circumscribe and diffuse, है ना. circumscribe होना and diffuse होना. सेकंड है elevated, आपका elevated and mortal lesions होना. most melanomas arise from the pre-existing benign or choroidal maybe. Okay, so most melanomas arise from the pre-existing से आपका arise होता है, benign आपका हो सकता है और choroidal maybe से आपका arising हो सकती है. नेक्स्ट है एक्सुडेटिव. एक्सुडेटिव में क्या होता है आपका रेटिनल. एक्सुडेटिव में आपका रेटिनल डिटैचमेंट आर सीन विद द ट्यूमर मोर दैट 4 mm. ओके, सो एक्सुडेटिव रेटिनल आपका डिटैचमेंट आर सीन देखने को मिलता है आपका विद ट्यूमर मोर देन 4 mm फिक्स होता है. लिपो लिपोफ्यूजन होता है और एन orange pigment is characteristically seen at the level of the retinal pigment epithelial RPE, and some large melanomas, especially those involving the ciliary body, have prominent episcleral feeder vessels. ओके, तो सम लार्ज कुछ इसमें लार्ज आपके मेलानोमास भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है लाइक आपका सिलियरी बॉडी हो गया एंड प्रोमिनेंट आपकी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिस्क्लेरल, जो कि आपका फेडर वेसल्स होता है. डिस्टेंट आपका मेटास्टैटिक होता है और आपका रेडिएशन देखने को मिलती है. रेडिएशन मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज होती है. वी कैन ट्रीट इट फ्रॉम द रेडिएशन enucleation treatment for choice for high risk melanomas. Okay, so diagrammatic presentation is like that. And ciliary body melanomas. Ciliary body melanomas, 10% of the uveal melanomas only visualize when pupil is widely dilated. Presentation depend on size and location, lens subluxation or localized lens opacities and sentinel vessels, erosion into the anterior chamber, posterior extension and retinal detachment. Okay, so presentation depend on the size and location. its presentation depend करता है इसके size पर and location पर, इसके lens पर depend करता है and subluxation और localized lens opacity. तो इसमें डिपेंड होता है आपका सबल्यूक्सेशन और localized lens opacity, जिसमें आपका sentinel vessels, erosion into anterior chamber and posterior extension and retinal detachment. Okay, next है आपका अल्ट्रासाउंड में भी नेसेसरी ट्रीटमेंट होता है आपका enucleation, local resection and radiotherapy.
Next, prognosis is poor as presentation is usually late. Okay, prognosis is poor as the presentation is usually late होती है, जिसकी वजह से आपका ये prognosis भी आपकी poor हो सकती है. Next is ciliary body melanoma. Picture left showing black and red reflections. Picture right showing tumor pushing and on and displaying the lenses. Okay. So now it's from my side. In today's lecture, we will discuss about next topic. And if you have any doubt regarding this, you may ask. So we will continue with part second.